Good morning, student. This is KK Bhatt here. Dear students, today once again I am here with the second part of video. Your chapter name, The Senai of Bismillah Khan Part 2 of Class 9 Behind. In the previous video, I have explained 1 to 4 part. In this video, I am going to explain point 5th. Look here and see through the PDF. The young boy took to music early in life. It means young boy, it means Ustad Bismillah Khan started to learn music in very early life. At the age of 3, events that is happened in his life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. 3 साल की अवस्था में जब his mother took him to his maternal house, where in the Banaras. Now it is called Varanasi. Bismillah was fascinated. Here fascinated means attracted. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Sahnai. Yani Bismillah Khan was surprised to see his uncle practicing the Sahnai. अर्थात आप कह सकते हो कि जब उसके अंकल सहनाई पर प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसको देख करके बिस्मिल्लाह खान कम्प्लीटली सरप्राइज हो जाते हैं. सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनीज हिज अंकल, और शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खान जो है वो अपने अंकल के साथ एक सीखना यानी सहनाई सीखना शुरू कर देते हैं. हु इज़ अली बख्श? अली बख्श. हु इज़ अली बख्श? अली बख्श इज़ द uncle of Bismillah Khan. Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sahnai. Ali Baksh always used to play the Sahnai at Vishnu temple of Banaras, where he was appointed to play the Sahnai. जहाँ उनको नियुक्त किया गया था सहनाई प्ले करने के लिए. अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड. अली बख्श जस्ट प्ले द सहनाई बट बिस्मिल्लाह खान who sat there just captivated, just want to catch all the things for hours on end. यानी इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड थे वो कि काफ़ी समय तक वो कैप्टिवेटेड मतलब अट्रैक्टेड होना, काफ़ी समय तक वो बैठे रहते थे, घंटों तक उनको शहनाई बजाते देखते रहते. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग. धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग, उन्होंने लेना शुरू कर दिया. क्या? लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, मतलब शहनाई बजाने का कार्य, शहनाई बजाने को सीखना उन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया. एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू द डे, और दिन में बैठ करके, पूरा दिन बैठ करके वो प्रैक्टिस, उस शहनाई का प्रैक्टिस करते रहते थे. फॉर ईयर्स टू कम, वर्षों तक, ही ज्वाइन द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, एंड देर आफ्टर हिज गो वेंट एंड टू सिट at the bank of Ganga river, and where the young trainee just favorite that place was those places are the favorite places of Bismillah Khan. यानी आप कह सकते हो कि वो जो प्लेस है, जगह है, वह बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बढ़िया प्लेस है. He started getting lesson in playing the instrument.
and would sit practicing without the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maya and bank of Ganga become the young apprentice favorite haunt, where he could practice in solitude. जहाँ वो बिल्कुल एकांत में बैठ करके उस सॉन्ग की प्रैक्टिस करते रहते थे, उस गानों की प्रैक्टिस करते रहते थे। इस तरह से बिल्कुल एकांत में बैठ करके वो उस संगीत का प्रैक्टिस करते रहते थे। Now see here, for years to come, the temple, Balaji and Mangla Maya and the bank of the Ganga became the young apprentice favorite haunt where he could practice in solitude. The flowing water of Ganga, यानी कह रहे हैं जो बहता हुआ पानी है गंगा का, द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज। वहाँ से उनको प्रेरणा मिली अपने राग को, अपने धुन को सुधार करने के लिए, एंड इन्वेंट रागास, और वहाँ बैठ करके वो तरह तरह के राग का भी इन्वेंशन करते रहते थे, खोज करते रहते थे। यानी द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज। जो गंगा का पानी है, बहता हुआ पानी, वो उसको प्रेरित करता है अपने म्यूज़िक को इम्प्रूव करने का, इन्वेंट करता है रागों का वो। एंड flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sainai, जो बाद में ये मान लिया गया है कि ये जो रेंज ये गा रहे हैं ये तो सहनाई से परे है, अर्थात that is very difficult work which has been performed by the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मतलब जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया वो बहुत ही अलग था, सभी लोग उसको देख करके फैसिनेट हो जाते हैं। I think it is clear. Now see the sixth point. Sixth point, at the age of 14, यानी कह सकते हो कि 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह एक्कम्पनाइड हिज अंकल। बिस्मिल्लाह जो थे वो अपने अंकल के साथ कंपनी करने लगे टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। यानी एट द एज ऑफ 14, यानी 14 साल की अवस्था में जो बिस्मिल्लाह खान थे वह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। एट द एंड ऑफ हिज रिज़ल्ट, जब रिज़ल्ट समाप्त हुआ, रिसाइटेबल, जब वो संगीत जो म्यूजिक था, जो सॉन्ग थे, वो सब जब समाप्त हुए, उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक। तब उस्ताद फैयाज़ खान ने क्या किया था, उसकी पीठ को थपथपाया था। बैक मीन्स पीठ, आप जानते हो, पैटिंग का थपथपाना, शाबाशी देना। तो उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, उन्होंने उस लड़के की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तुम कठिन परिश्रम करो, तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें विजय मिल सकती है। दैट इज़ वाई यू कंटिन्यू टू डू हार्ड वर्क। यही कारण है कि तुम हार्ड वर्क करना शुरू करो। नाउ सी हियर, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। यानी आप समझ सकते हो कि जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का लोकार्पण हुआ इन 1938, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। वहीं बिस्मिल्लाह के जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, बहुत बड़ा उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। ही सून बिकेम वो जल्दी ही फेमस हो गए, ऑफन हर्ड सैनाई प्लेयर ऑन रेडियो। यानी रेडियो पर अक्सर उनको शहनाई बजाते हुए सुना जा सकता था, और शीघ्र ही वो उनकी धुन, उनकी आवाज़ प्रतिदिन रेडियो पर शहनाई बजाते हुए सुना जा सकता था। इस तरह से धीरे धीरे जॉइंट रेडियो स्टेशन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिकम फेमस।
I think that is clear in fifth and sixth. Now see number 7. अब 7 नंबर देखो. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sainai. He poured his heart out into rag coffee from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous tryst and witnessed speech. What do you understand? When India gained independence on 15 August 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उसको जब आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन. बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय थे टू ग्रेट जिन्होंने वेलकम किया था नेशन को विथ हिज सेनाएं. यानी बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत का स्वागत किया था अपने सेनाई से ऑन 15 अगस्त 1947. यानी he welcomed the country with his सेनाई on 15 अगस्त 1947. He poured his heart. poured मतलब होता है किसी चीज़ को निकाल के रख देना, यानी इतना भावविभोर हो जाना कि पूरी दुनिया को भूल जाना, बिल्कुल म्यूज़िक को बिल्कुल ले करके पटक देना. He poured his heart out into rag coffee. राग कॉफ़ी के माध्यम से उन्होंने अपने दिल को निकाल के श्रोताओं के सामने रख दिया. फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस. जो ऑडियंस थे उन ऑडियंस के सामने उन्होंने राग कॉफ़ी को ऐसे बजाया कि जैसे लगा कि सबके सामने उन्होंने दिल खोल के बाहर कर दिया हो. विच इंक्लूडेड, उस ऑडियंस में कौन कौन लोग इंक्लूड थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू इंक्लूड थे, एज वेल एज महात्मा गांधी. ठीक है. हु लेटर गेव हिज फेमस, जिन्होंने बाद में अपना फेमस स्पीच दिया ट्रिस्ट विद डेनिटी. ट्रिस्ट विद डेनिटी पर एक स्पेशल स्पीच उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी शामिल किया. तो आई थिंक इट इज क्लियर. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन 7th. अब डियर स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड 5, 6 and 7. Now see what is in 8. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. Abroad means foreign countries. यानी ऐसा कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान को हैज़ गिवन मैनी, बहुत ही स्मृति मेमोरेबल परफॉर्मेंस किया है. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही मेमोरेबल, बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस किया है बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड. नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन फॉरेन कंट्री. इन्होंने ये परफॉर्मेंस केवल भारत में ही नहीं दिया है बल्कि विदेशों में भी जा कर के उन्होंने ये परफॉर्मेंस दिया. आप समझ सकते हो कि थ्रू द सेनाई हाउ मच फेमस बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान कितना फेमस हो गए थे. अपने इस सेनाई के माध्यम से उन्होंने अपना तो नाम उठाए, हमारे देश के गौरव को भी बढ़ाने का काम किया था. तो वही कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. यानी बिस्मिल्लाह खान को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, सब जगह उन्होंने जा कर के परफॉर्मेंस दिया है. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान. विदेश का पहला उनका दौरा था, वो कहाँ का था? अफगानिस्तान का था. वेयर किंग जहीर शाह, जहाँ किंग जहीर शाह थे, वाज सो टेकन इन बाय, इतना ज़्यादा वो वाज सो टेकन, ठीक है, बाय द मेस्ट्रो. मेस्ट्रो मतलब उस म्यूजिक से, उस शहनाई से इतना ज़्यादा वो इम्प्रेस हो गए, इतना ज़्यादा वो प्रभावित हो गए दैट ही गिफ्टेड हिम. खुश होकर के, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और खुश होकर के उन्होंने इसको गिफ्ट दिया. क्या दिया? और इन्होंने दिया था उसको ए पर्शियन कारपेट. मतलब अ पर्शियन कारपेट हैज़ बीन गिवन बाय किंग जहीर शाह. और इतना ही नहीं, उसके अलावा और भी उन्होंने क्या दिया था? एंड अदर
सॉवेनियर्स थिंग्स, दूसरे भी सॉवेनियर्स थिंग्स, यानी दूसरे भी अत्यंत मेमोरेबल गिफ्ट उन्होंने दिया था, दूसरे भी अत्यंत मेमोरेबल गिफ्ट उन्होंने उसको दिया था। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि उस बैठक में बैठा हुआ सिर्फ किंग ही बहुत ज़्यादा उनके म्यूज़िक से प्रभावित था। तो कह रहे हैं कि किंग ऑफ अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान के राजा थे, वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड, केवल वही प्रभावित नहीं हुए विद बिस्मिल्लाह खान्स म्यूज़िक, यानी बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से सिर्फ वही प्रभावित नहीं हुए, किंग ही प्रभावित, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, इट मीन्स द फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड with the music of Bismillah Khan. He was also attracted with the music of Bismillah Khan. He was so impressed after hearing Bismillah's plays. यानी बिस्मिल्लाह के उस प्ले को सुन करके, उस म्यूज़िक को सुन करके, उस शहनाई को सुन करके इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। मतलब इतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हुए, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया उस शहनाई के नाम पर, उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर, गूंज उठी शहनाई। मतलब ही हैज़ गिवन द नेम टू हिज फिल्म ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट विच वी कॉल्ड शहनाई। द नेम ऑफ द फिल्म इज गूंज उठी शहनाई। दैट इज the great achievements of Bismillah Khan. The film was a hit. फिल्म क्या होती है? The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, turn out to be a nationwide chart busters. This film became very hit and one of the Bismillah Khan also composed a song. The song was दिल का खिलौना है टूट गया, turned unto to be a nationwide chart buster। यानी ये पूरे देश में ये जो सॉन्ग था बहुत फेमस हुआ। यानी दिस सॉन्ग जस्ट ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड, दिस सॉन्ग जस्ट ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड, उसने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आगे देखो, वेंचर्स फिल्म बिस्मिल्लाह देखो दिया, टर्न आउट टू बी नेशनवाइड डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलोड वर्ल्ड। यानी इस सेल्यूलोड इस मायावी दुनिया में वो सॉन्ग बहुत सफल हुआ। इतनी सफलता के बावजूद भी Bismillah Khan's ventures in film music were limited to only two. He just played only two films, Vijay Bhatt, Goj Uthi Sahnai, and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadhi Aparna. Here are two films. He has performed only in two films. The first is Goj Uthi Sahnai and the second is Sanadhi Aparna. I just can't come to terms with the artificially, वो कहते हैं, and glamours of the film world. He says with emphasis. वो बिल्कुल emphasis के साथ कहते हैं, बहुत ही फोर्स के साथ कहते हैं कि मैं जो है इस प्रकार के आर्टिफिशियल और ग्लैमर्स तड़क फड़क की दुनिया में नहीं रह सकता, बिकॉज ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन
he can't like to live a life which is fully artificial and based to the glamour. In this way you can see here uh, uh, Bismillah Khan just left the filmy words. Okay, I hope it is clear to all. Thanks to watch my video.